Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. In this edition of Wait for 8 by Sirf News, we are discussing the taking over of Netflix, Amazon Prime Videos, and other OTT platforms by the Information and Broadcast Ministry. Earlier, they were, at least for the sake of formality, reporting to the IT Ministry. Now, has this been triggered? Has this government decision been triggered by the constant complaint that these platforms are showing anti Hindu content? That is one question. Now, even if the question is valid, how efficient is the government in censoring and should censorship exist at all? If we remember, there was a huge controversy about the way Pahlaj Nihalani was handling the CBFC, the Central Board of Film Certification. Later on, when the Shyam Benegal committee was formed, the committee came up with a recommendation that categorically said that the body, the so-called censorship board, is supposed to be just a body of certification and not of censorship. Now, we will discuss the pros and cons of today's move. To join to discuss this, we have with us Sablok Tantra's Rachit Kaushik. He is a regular video presenter. He deals with current affairs on his YouTube channel, which goes by the name Sablok Tantra. We have political commentator Gautam Mukherjee. He is a regular on a lot of mainstream broadsheets as well as websites. We have with us analyst Shugoto Hajra. He also is a regular columnist with Sirf News. Welcome to the show, all of you. So I begin this issue by going over to Rachit. Rachit, how do you see this move? We need to see why this demand was rising and why the ministry needed to be pitched in. First thing that we need to understand is that there is a need to monitor the content that has been delivered to us in the name of content, whatever has been delivered to us on the OTT platforms. I would say the exceptions are for a natural viewing of the audience, and the rule goes by the filth, the abuses, the sheer nudity of the ideas. I'm not talking about skin nudity, nudity of the ideas that should rule our mainstream. And if you could make your point citing a few examples, Rachit, cite a few examples, because there could be part of an audience that is uninitiated, that does not know what the fuss is all about. Yeah. Right. The most important and most prominent example would be of the web series which is making waves all around the country is Mirzapur. I'm not talking about the abuses that it throws at you. The abuses were used in Vasepur also, Vasepur series also. But what amuses me in that series is that they are trying to break all the maryada, if I may call so, of social relations, family relations, and sanctity of our society into a toss. Just for an example, the trailer of Mirzapur boasts of a dialogue from one of the popular characters about his mother and the use of ladder. I think everyone would have got it. I am too ashamed to recreate that there. I cannot talk about all. I cannot talk at all about the Alt Balaji brand of series, which by name of investigative and then relations and all those things, they have to show only skin show. So from that perspective, we had to have a regulation. Now, the big question arises whether it should be a self-regulatory body or a government-regulated or a third-party regulated body. We have seen in terms of media guilds, and you would know much better than me, how effective these self-regulating bodies are. So there was a need. Now we need to later on look at it, whether the government is the exactly correct entity to deal with this situation or not.
Right, right. Gautam, well, Rachit has put the thing in perspective. Now, the issue is the government finally means a set of bureaucrats, right? It does not mean the INB minister necessarily. So, how competent do you think this set of bureaucrats are going to be in appreciating the medium that cinema is? Well, Gautam, yeah. Surajit, I hope they will be extremely liberal. We do not want to turn into the USSR. Right. I am, with all due respect to Rachit, a Mirzapur fan. I loved it. Okay. I like phase 1, I like phase 2, and I'm looking forward to phase 3. I loved Wasipur as well. I like all of this stuff that is streaming because one, it's cheaper to produce. Two, it is, it gives them the scope to have 8-10 sessions of an hour long, 45 minutes long, and do justice to the thing. I'm watching Scam right now. It's very good. It is balanced. It says that the man was a victim, and I've always believed it. I think if people who sort of turn around and call you a crook are usually crooks themselves. Maybe it's the old 70s upbringing, but that's how I see it. Now, having come to this, I think we ought to be very, very careful about the whole idea of censorship. I think the Information and Broadcasting Ministry is a joke. I don't know why we pay for it. It has never done anything worthwhile. So I'm very happy in one sense that this has come under the Information and Broadcasting Ministry that has no clue, has never had a clue, no matter who the minister is, on anything about content, because they're usually headed by a minister who is ignorant about culture, anything of that sort, creativity, culture. He doesn't know. So he's there as some kind of benign policeman who likes to sleep on the job. And I'm okay with that. Okay. All right. Having said that, where do I want all this controlled? Particularly on the internet, on the YouTube and so forth, is this hate spewing by the Islamists. I want that controlled. I don't care about nudity. It titillates me like the next man. I like it. I have no problem with that. I was reading stuff about Goa, about why these people are being prosecuted. I agree with them. What are you prosecuting them for? I mean, nudity, Goa, it's allowed. What's wrong with it? And to come and get all huffy about it. As it is, the locals are, 60% Hindu who are reasonably, conservative. I agree. Yeah. But is this all there is? 40% are Christian, they're even more conservative. And yet Goa has always gone on in a certain manner, and to destroy that would be a mistake. I don't want Sarkari approved art. No, not at all. Okay. I think that is as categorical as it gets. Shugato, if you look at the way a web series is made, I'm sure you have watched a few, whatever genre it might be. There's a particular technique they use. If you avoid reaching till the end of an episode, you can resist binge watching, right? Like at the end of every episode, you see something that hooks you on. It makes you, not to leave your sofa, not to leave the couch and watch another episode. And that is how it goes. Now, the point is, if that is a marketing technique or that is a filmmaking technique, whatever it is the government, by the nature of a government, able to appreciate that, and is at all, given the variety of, being Hindu and not being Hindu nature of BJP,
that we see across the states. Will the prime concern ever be addressed? Yeah. See, actually, the prime issue that we should talk about is that the government had to wake up only after receiving a notice, that too against a PIL in Supreme Court. I mean, in fact, what was the reason that this was left in the IT ministry so far? Can somebody in the government explain why was it lying there? This issue is basically pertains to one single word. The word is censorship. There are two categories of content. One is, of course, the news, and another is entertainment. Now, the question that we were talking so far was about entertainment. But both news and entertainment are important, and there should be some kind of regulation. You cannot just say anything. Now, both for entertainment and for news, there is a national sensitivity, there are national issues which should not be portrayed, like the kind of restriction is there on news media, self-censorship you may call it, or whatever. So there has to be a regulatory body both for this online content, either entertainment or in news. Now coming back to the other point, whether the babus or the minister is educated or capable of doing it or appreciate it is immaterial. Because even if there is a regulator, the regulator or regulatory body should, in all fairness, consist of people who are from that trade or knows that business. It is expected that not a Babu or Prakash Javadekar himself will regulate it. It is expected that the government will create a regulatory body, both for online news, that is content, and as well as entertainment. This is the second. So we will not have, hopefully we will not have another Pahlaj Nihalani like fiasco, right? Now coming to the third point, that who are the members of those committees? That is very important. Yes, we may have somebody who does not know anything, but will try to regulate everything, etc. That is another issue. But again, it is expected in that the governments today will be more sensitive, particularly when it comes to online content, because it is consumed by mostly younger generation or the people who are in the know. Whether the government gets vote from them or not, political dispensation is interested in that is not. That is a different issue. But the fact is, any kind of misadventure here will have a global outrage, which will impact the image of the government as well as its outreach for investment and economy. So I feel that government is not that stupid, though they woke up rather late, very late rather. In fact, they should have done it even earlier, and they have not done it. So anyway, that is it. Let's see what happens. In fact, this regulation today, this intimation today, I saw it. Yes, it was much desirable. So they have done it now. Right. Rachit, a large section of our audience is also Hindi speaking. They are more comfortable with Hindi. तो अगला प्रश्न मैं आपसे हिंदी में करूंगा कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन या डिज्नी हॉटस्टार इन सब के खिलाफ जो हम लोग शिकायतें करते हैं, उन शिकायत में एक चीज शायद हम लोग भूल जाते हैं कि ये स्वयं फिल्म बनाने वाले नहीं है. ये फिल्म बनाने वालों को एक प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, चाहे उसमें अनुराग कश्यप कुछ बनाए, चाहे उसमें सुधीर मिश्रा कुछ बनाए, तो वही फिल्म बनाने वाले हैं जो कि बॉलीवुड के लिए फिल्में बनाते हैं. और इन दिनों कोविड के कारण, चूंकि लॉकडाउन के समय लंबे अंतराल तक सिनेमा हॉल सब बंद थे, तो अधिकांश फिल्में भी वहीं पे रिलीज हो रही थी. अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम कहते हैं, हम लगातार ये आरोप लगाते हैं इस इंडस्ट्री पर कि ये संवेदनशील नहीं है, खासकर हिंदू विषयों पर, हिंदू समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं है, और शायद इनको मजा आता है हमारा कटाक्ष करना, हमारा व्यंग करना, हमें जो है नीची नजर से देखना. लेकिन जिनको माना जाता है कि प्रो हिंदू फिल्म मेकर्स हैं, शायद अगर मैंने इधर का नाम लिया तो उधर के भी मैं कुछ नाम ले लेता हूं. विवेक अग्निहोत्री हैं, और फिर शायद मधुर भंडारकर भी हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद इसका जवाब दे सकते हैं, मतलब आर्ट का जवाब आर्ट से दे सकते हैं. और
और उसके बाद अगर वो लोग हल्ला मचाएं, मान लीजिए जी। मुसलमान हल्ला मचाते हैं, ईसाई हल्ला मचाते हैं, जी। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि आपने हमारे टाइम पे तो हल्ला नहीं मचाया था, लीला के टाइम पे हल्ला नहीं मचाया था, मिर्जापुर के टाइम में हल्ला नहीं मचाया था, पाताल लोक के टाइम में हल्ला नहीं मचाया था, तो अब क्यों हल्ला मचा रहे हैं? बराबरी का होना चाहिए। ये रास्ता हम क्यों नहीं इख्तियार करते? जी, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चुनौती हमारे सामने है जिसको हमें ध्यान हाँ। रखना होगा कि जो हमारी टिपिकल, चाहे उसको सिनेमा कहिए या आर्ट फॉर्म कहिए, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हाँ। टिपिकल, वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा कि हम सिनेमा या आर्ट से एसोसिएट करते रहे हैं। वो कुछ इस एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म और एक बिजनेस के बीच में है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम कंटेंट को डिसाइड नहीं करते हैं और उस तरह की सेंसरशिप कर भी नहीं सकते हैं जिस तरह की सेंसरशिप कोई रेगुलेटरी बॉडी करती है। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना होगा कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको सेंसिबिलिटीज का, संवेदनाओं का, मर्यादाओं का, उस सामाजिक संरचना का और उस समाज की कॉन्शियस का आपको सम्मान करना चाहिए एक बिजनेस के प्रकार से। मैं ये नहीं कहता कि वो आर्ट की दृष्टि से उस पर क्रिटिकल होकर उसको सेंसर करें, लेकिन आप जिस कंटेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी अगर कोई सामाजिक अगर उसकी कुछ प्रतिक्रिया होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो ये कुछ बिजनेस की तरह है। एडवर्टाइजमेंट्स तो पिछले 50-60 साल से और उससे पहले से भी बनते आ रहे हैं। तो लेकिन आप ये बताइए, जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको आप ही की बात से, कि देखिए आपको याद होगा कुछ साल पहले आमिर खान को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, और जिसके बाद लोगों ने स्नैपडील के ऐप पर जाकर उसको डाउनग्रेड कर दिया, और उसको इतना भारी नुकसान हुआ बिजनेस का। लेकिन स्नैपडील के केस में क्या था कि हमारे पास ऑप्शंस थे, हमारे पास फ्लिपकार्ट था, हमारे पास अमेजोन था, तो वो केवल एक ऑनलाइन शॉपिंग का ये नहीं था। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि जो न्यूज एजेंसीज होती हैं जो कि ज्यादा खबरें देती हैं किसी एक न्यूज मीडियम से, उनमें भी, या फिर जैसे आप देखिए कि डेली हंट एक वेबसाइट है जिसमें कि आप अलग अलग स्रोतों से खबरें पा सकते हैं। इसी प्रकार आरएसएस के कुछ लोगों ने मिलकर एक रितम ऐप शुरू किया है, उसकी भी खबर आपको होगी। तो वैसे रितम ऐप जैसा हम नेटफ्लिक्स का एक कॉम्पिटिटर क्यों नहीं खड़ा कर सकते? जी, मेरी बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री के एक इनसाइडर से, और मैं बहुत आशावान होकर उनसे बोल रहा था कि इस लॉकडाउन के बाद शायद एक चीज बदलेगी। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मैं बात करता था, तो वहां बोला जाता था कि जो सबसे बड़ी अड़चन है वैचारिक स्वतंत्रता की और विचारधारा की न्यूट्रलिटी की, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है वो कराची से प्रभावित होता है और कराची से कंट्रोल किया जाता है। तो आप अगर चाहें भी, और ऐसे बहुत से फिल्म मेकर्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कि अगर आप हिंदू हित, अगर मैं इस तरीके से एक थोड़ा संकुचित करके भी इसको बोलूं, उस विचारधारा को या फिर आप राष्ट्रवादी विचारधारा को अगर प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक तरह से अघोषित बॉयकॉट, बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि जब अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैन जब टूटी है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो अधिसत्ता थी फिल्म मेकिंग पर और आर्ट पर, वो अगर वो हटी है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें थोड़ी और स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिली है, तो शायद हमें राष्ट्रवादी कंटेंट और देखने को मिलेगा। तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने इस आइडिया को जरा होल्ड कीजिए, इस आइडिया को जरा होल्ड कीजिए, मैं गौतम के पास ले जाता हूं। गौतम, इफ यू रिकॉल, when we had banned 59 Chinese apps, just a couple of days after that, the concerned ministry had sent a memo to all these app makers and app dealers saying that you prove that you are not reporting to CCP or you are not leaking data to China. Now, Rachit is saying that these things are being managed from Karachi. This is certainly a point where the government must intervene, right? You know, the point is that it's out in front of the public. They get the yay or nay, you know, as in when you were
gladiators. You eventually looked at the king and he said, kill the man or let him off. That is how This is Sadak 2 flopped, in fact. Sadak 2 flopped This is the because public. people, You can manipulate from Karachi or Timbuktu. But if I don't like it, I don't like it. And if I do, I do. And I am entitled to like or dislike things. Now, I go to the Hindu business. Right. I think Hindus are the most confident people in this universe. Why? Because their religion dictates nothing. You do as you please. You adopt which degree of whatever you please. And Aren't Hindus being taken for granted because of that reason? no, wait. I'm talking about a broader point, and then we come Yeah. to, yes, you're right, but that's another story. I'm trying to make another point. As a matter of fact, whether a Christian is barking at me or whether a Muslim is barking at me, I know who I am. I am not shaken. And most Hindus are not shaken as to who they are. They know who they are. It may not be so easy to determine or define. The British hated us. The British said the Hindu is a can of worms. They are extremely devious, vagere, vagere. Muslim, man of the book, I can tackle him. Christian, he's my bloody slave. He's born to the same cloth, no problem. Now, a Hindu knows how to reject and accept what he wants. One of the reasons why secularism, so-called, is powerful is because the Hindu is comfortable with this diversity. He puts up with a Javed Akhtar without any problems. He knows he's biased. You think a Hindu is stupid? He knows Javed Akhtar is pushing a particular thing, and now so is Zoya, and so is. But they do it well. They know what they're doing. They're good at their craft. You have to acknowledge that. Now, we come back to what needs to be restricted. What is blatant, bloodthirst propaganda? Yes. But subtle influencing this way and that, leave it alone. It's part of art. Right. Rachit, what were you objecting to? मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो हमें वो सुनाया जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और बताया जाता है कि और न सिर्फ हमारे इधर के लोग बल्कि हमारे विपक्षी भी कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या इतना कमजोर है कि एक फिल्म में दिखाए जाने से वो हो जाएगा। तो मैं इस बार पे बता देना चाहता हूं कि हम इंडोनेशिया से लेकर और ईरान से आगे तक हिंदू फैले हुए थे और वो सिमटते आ रहे हैं। तो ये हमारी ये सहिष्णुता का ही कारण है, जिसे हमें लगता है कि हम एक कश्मीर अगर छोड़ देंगे तो हमारा धर्म कोई खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो हम क्यों लड़ाई लड़ें, हमें लड़ना नहीं चाहिए, सहिष्णुता से उनको वो करना चाहिए। सिमिलर चीज मैं आर्ट में देखता हूँ, और मैं यहाँ पर गौतम जी से डिसएग्री इस बात पर भी करता हूँ कि जो सटल चीजें हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, और वो चीजें जो बिल्कुल सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करती हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं देता हूं कि लव जिहाद की जो समस्या बढ़ी है और जितने भी विक्टिम्स से बात की गई है लव जिहाद के, तो पॉपुलर आर्ट और सिनेमा उसके दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसके कारण लव जिहाद का ये माहौल जो है फैला है। तो इसलिए हम सटल आर्ट को और उसकी जो एक सटल प्रोपेगेंडा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हर चीज को हम हार्ड वायर करके सेंसर नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को, बल्कि मैं कहूंगा अधिकतम चीजों को हमें, जैसा हमने सड़क 2 के साथ किया, जैसा हमने लक्ष्मी बॉम्ब के साथ किया, उसी प्रकार से उत्तर देना सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन कुछ जगह पर हमें वो सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है। उनको जिस तरह के एवेन्यूज प्राप्त हैं वो हिंदुओं को या राष्ट्रवादियों को, हिंदुत्ववादियों को नहीं प्राप्त हैं। ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जिन तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, और वो सोशल, अगर मैं सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ट्विटर है चाहे यूट्यूब है,
उनका जो बायस है राष्ट्रवादियों के विरुद्ध, उस कारण हमारी आवाज हमेशा उन लोगों से कम पहुंचती है। तो इसलिए हमें स्टैट्यूटरी एक शक्ति भी चाहिए उन शक्तियों को रोकने के लिए। Right. Shugato, which side you are on? Rachit's side or Gautam's side? Yeah. So, I mean, basically, you see, I'm on Rachit's side when you also. are giving Right. I understand what he's saying exactly. very well. Yes. Yeah. So when you are disseminating certain information or entertainment for the people, now this is a standard practice everywhere that there has to be some kind of regulation. That is everywhere. Even the freest of the free Right. country is supposed to be USA, or absolutely closest of the closed country China. I think it is there everywhere. India cannot be different, because all of a sudden I do a story where I will say that Kashmir should be away and so on and so forth. This cannot go on. What about There the has web to be some series? kind of Let's say, what about the web Now, series The Family Man? Manoj Vajpayee, Gul Panag. You know, Loved it it. projected the Pakistani point of view on Kashmir. I liked it. Manoj Vajpayee is fantastic. Actually, I am sorry about that. In fact, I do not watch such Okay, series, all right. so I am not a person who can comment Right, on those such right. things. I am very selective in watching things. But what Rachit was saying, that Karachi se control hota hai, I really don't know, because Netflix, I thought, is an American company, Okay. and I normally watch this, European or this American serials. I do Right. not know what Karachi influence is there. Basically, it's a distribution channel. Okay, if it meant that the distribution of movies were controlled elsewhere, Right. well, that might be. I really do not know. But the thing Right. is, if a distribution channel is there, there has to be a fair play, Right. and there should be a guideline on what should be shown, what should not be shown. Now, if Right. that guideline is not flouted, then that content should go. Right. Be aired. No problem about it. And yes, Right. how much censorship will be there? What time? As a matter of fact, I remember long ago, even Doordarshan was showing certain less censored movies long ago. I think 30 Yes. years before. So Yes, they were showing yes. late night for the Right. late night audience. Now there can be, I mean, as far as family nudity and all those things are concerned, there people may have different views, but then there, I mean, you can have your self-regulation at home or something Right. like that. Right. As far हमारे as साथ अभी पीयूष श्रीवास्तव जुड़े हैं, जो कि पत्रकार रह चुके हैं दीर्घ समय तक और इन दिनों पब्लिक रिलेशंस में हैं। पीयूष जी, आज शायद आपने देख लिया होगा टॉपिक जो है, तो दोनों पक्ष की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो ये कि इनको खुली, मतलब बगैर लगाम के खुली छूट नहीं दी जा सकती, ये नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियोस वगैरह हैं। दूसरी तरफ ये भी कंसर्न है कि सरकार जो है, या सरकार बाय नेचर जिस प्रकार की होती है, मतलब जनरली तो ब्यूरोक्रेट्स उसको हैंडल करते हैं, नेता तो हैंडल करते नहीं है, तो उनको क्या समझ है सिनेमा माध्यम की? क्या वो कॉम्पिटेंट है कि वो इस चीज को, सेंसरशिप को या सर्टिफिकेशन को ठीक से हैंडल कर पाए? पीयूष जी। पीयूष जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। Okay. Shugato, have you finished your point? No, it's okay. Basically, you have to have regulation. There is no two opinion about it. Right. How Right. much anti-Hindutva they can do in a market which is overwhelmingly Hindu, that is doubtful, because they are doing business after all. By just propagating anti-Hindu sentiment, etc., anti-national Right. thing, they will be basically losing business. So if they are doing business, they will be doing Well said. business. And most important thing is, yes, as far as regulation is concerned, the government should appoint professional bodies, and there should Right. be a very laid down rules that this professional body must consist of these kind of people. Otherwise, your opposition will come and they will propagate Right. something else. So you have to have a Right. system Right. in place. And there should Right. be regulation. There is no two opinion about it. पीयूष जी, मेरी आवाज आई आपको? आपने बिल्कुल, मेरा बिल्कुल आ प्रश्न रही है। सुना? हाँ, बिल्कुल मैंने
जी, मैं आप आपका प्रश्न सुना। आप किस तरफ हैं? आप किस तरफ हैं इस मेरा मेरा issue मेरा पे? मेरा सिर्फ इतना कहना है इस पे एक ही लाइन में कि देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तभी हो जाना चाहिए था जबकि ये प्लेटफॉर्म भारत में एंटर कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा कि क्या हमारे पास वो नो हाउ है कि हम इसको मैनेज कर पाए, इसको रेगुलेट कर पाए? ऑफ कोर्स है। जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो कि फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं उस एरिया के, और उसको उसका एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है उनका, जिसको वो फॉलो किया जाता है। क्योंकि मेरे दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड्स हैं, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैं इस वक्त, और उनको भी नहीं पता होता जब उनको फिल्म को रिव्यू करने के लिए जाना होता है, फिल्म को सर्टिफिकेट को कैसे रैंडम उठाया जाता है, पिकअप किया, वो उनको भी नहीं पता होता। तो उसका बड़ा ही सेट प्रोसीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से जब सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है तो उसके लिए वो यकीनन उसके पास एक मैकेनिज्म तैयार होगा, और नहीं होगा तो इस तरह के तमाम एक्सपर्ट्स हिंदुस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं काफी, जिनको की सिनेमा की और कंटेंट की अच्छी समझ है, और वो लोग इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। समस्या ये हो जाती है कि जब हम इसको एक चश्मे से देखने लगते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैंने रचित भाई का कमेंट सुन नहीं पाया, बट मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने क्या कहा है, तो उसी पे मैं ऐड ऑन करते हुए कहूंगा कि ऑफ कोर्स अगर हम कुछ एक सर्टेन प्लेटफॉर्म को हिंदूफोबिक मानते हैं तो वो हिंदूफोबिक है, और इसमें कोई डाउटफुल नहीं। अगर लैला जैसा कोई सीरीज या सेक्रेड गेम जैसा कोई सीरीज अगर आता है, हाँ, इसमें बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डाउटफुल, हमें किसी तरह के डाउट में नहीं रहना चाहिए कि वहां पर एक सर्टेन गॉन ऑफ प्रोडक्शन और इस तरह के कई और प्रोडक्शन हाउसेस का वहां पे एक कॉकस है पूरा, जो कि उसने मैनेज करता है। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इनका ये किस तरह से प्रेशर में काम करते हैं, किस तरह से ये हमको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। दो एग्जांपल है यहाँ पर। एक गुंजन सक्सेना करके अभी हाल में फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, जो कि एक फीमेल एयरफोर्स पायलट के ऊपर बनी। भारत सरकार कहती रहेगी कि इसको आप हटाइए, इसको हटाइए, क्योंकि फैक्चुअली गलत है। हमारे इंडियन एयरफोर्स ने भी बोला कि ये फैक्चुअली गलत है, आपको इसको हटाना पड़ेगा। आपने नहीं सुना उसको। लेकिन एक मसीहा करके सीरीज आई थी, जो कि बहुत ही पूरे देश दुनिया में इसको देखा गया, और उसमें इस्लाम को कहीं भी किसी भी तरीके से सामने नहीं लाके बुराई की गई, बट सर्टेन प्रैक्टिसेस की उसमें बुराई की गई। उसमें एक फिक्शन था, जिसमें फिक्शनल कैरेक्टर था कि एक नया मसीहा आता है और एक नए तरीके का पैगाम देता है, जिससे एक सर्टेन मुस्लिम कंट्री जॉर्डन को प्रॉब्लम हुई। जॉर्डन ने एक बार रेस किया, और आप सोचिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वो जो सीरीज उस साल बनी थी, उसके सेकेंड सीजन को नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप कर दिया। ये होता है प्रेशर वहां का, और हमारे यहाँ से जब वो प्रेशर दिया जाता है तो वो उसको नहीं मानते हैं। तो अब अगर इसको दोगलापन न कहा जाए इनका, तो इनको उसको और क्या कहा जाए? और एक नहीं, एक के बाद एक इस तरह की सीरीज को ये प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप रेड चिली प्रोडक्शन का बार्ड ऑफ ब्लड देखेंगे, उसमें जिस तरह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मजाक उड़ाया गया है, हमारा इन्वॉल्वमेंट वहां पे बलूचिस्तान में देख के शर्म आती है, घिन आती है कि कैसे इस लेवल तक ये जा सकते हैं, बट कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारे घर में हमारे बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो तो यही समझेंगे ना कि ये जो हो रहा है हमारी एजेंसीज ऐसा बलूचिस्तान जाके कर रही हैं। उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? मुझे याद आता है, मैं इस बात को मैं रचित जी के पास ले आता हूँ। रचित जी, ये जो पीयूष जी ने बात की कि हमारे बच्चे भी साथ में बैठकर देखते हैं, तो कहीं ये हमारी गलती तो नहीं है जो गलती हम सरकार पर थोप रहे हैं या फिल्म बनाने वालों को थोप रहे हैं? कई वर्ष पहले की बात है, तो वन ऑफ माय नेफ्यूज, तो उस समय वो 5 साल का था, अभी काफी बड़ा हो गया, 7-8 अभी करीब 10 साल का हो गया। तो वो अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ चाइल्ड बर्थ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, कि बच्चा पैदा कैसे होता है। और हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि इतना छोटा बच्चा, इसको तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े सेक्स एजुकेशन के पैरोकार हों। तो पता चला उसने 3 इडियट्स फिल्म देखी थी, और 3 इडियट के क्लाइमैक्स में जहां पर कि आमिर खान चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, उससे उसको आइडिया लगा कि बच्चा होता कैसे है, पैदा कैसे होता है, कैसे असिस्ट किया जाता है इसमें। तो अब बात ये है, तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि जब ये सीन आने वाला था, आपने पहले भी फिल्म देखी हुई थी हॉल में, आपको पता था कि किस वक्त ये सीन आने वाला है, या तो आप टीवी बंद कर देते, या फिर आप चैनल स्विच कर देते, या तो फिर बच्चे के साथ बैठते ही नहीं देखने के लिए, ताकि वो ऑकवर्ड सिचुएशन ना आए। तो ये जो हमारा दायित्व है
ये हम किसी और के मत्थे मर रहे हैं क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि परिवार का दायित्व ज्यादा होता है, लेकिन हमें इस चीज को भी समझना होगा कि जो हमारा संचार तंत्र है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और जिस तेजी से वो बदल रहा है, और आप हमारे अगर देश में देखें कि पहले जिस तरह के संचार तंत्र लोगों की जो रीच थी वो प्रबुद्ध लोगों तक रीच थी, लेकिन आज एक रिक्शे वाले से लेकर ठेले वाले तक, एक गांव के किसान से लेकर मजदूर तक, सभी के पास ये चीजें पहुंच रही हैं। ऐसा होना बिल्कुल चाहिए कि परिवार का दायित्व होना चाहिए, लोगों का दायित्व होना चाहिए, लेकिन क्या वो इस चीज के लिए सशक्त हैं मानसिक रूप से? क्या वो समझते भी हैं इस चीज को? क्या उनको इस चीज का एक्सपोजर भी है? जो मॉरल एजुकेशन इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए जो वो बात करनी चाहिए, उसका प्रपोर्शन क्या वही है जितना पेनिट्रेशन हमारे मीडिया को, हमारे जो संचार तंत्र है उसको मिल रहा है पूरे देश में? तो मॉरली बिल्कुल होना चाहिए, परिवारों का दायित्व पूरा होना चाहिए और सबसे पहला होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए। लेकिन अगर वहां तक उसमें कुछ गैप आ रहा है तो क्या हमारा एक समाज के रूप में दायित्व नहीं बनता है कि उनकी मदद करें इस चीज में? दूसरी चीज मैं एक बताना चाहूंगा कि टीवी और थिएटर का जो रेगुलेशन है, थिएटर का रेगुलेशन है कि वहां पर आप 18 जो यूए करके फिल्म है या एडल्ट ओनली फिल्म है सर्टिफाइड, तो उसमें आप 18 साल से बच्चे को जाने से रोक सकते हैं। टीवी में ये है कि माता पिता उसको प्रयोग करने से रोक सकते हैं। लेकिन आज के समय में जब अगर देखें 10 से 12 साल की बच्ची है जो कहीं स्कूल जाती है, और जहां कहीं अलाउड है, हर जगह अलाउड, या कहीं बाद में किसी क्लासेस जाती है, ट्यूशंस जाती है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे फोन दिया है, तो आप प्रैक्टिकली सोचिए कि ये कितना फिजिबल है कि उसको पूरी तरह से रोका जाए। दूसरी चीज, इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो आप चाहे टीवी पर देखें, कैसी कैसी वेब सीरीज के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप अगर बच्चों के साथ बैठे हैं तो आप वेट नहीं कर पाते कि चैनल कब चेंज करें। आप YouTube पर जाएं, जो 13 साल से ऊपर के बच्चों उसको देख सकते हैं और देखते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल चीजें वहां पर मिलती हैं, और उसमें अचानक से एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होता है बच्चों के लिए। तो इसलिए केवल हमें ये कह देना कि परिवार को रेगुलेट करना चाहिए और संस्था की या सरकार की या खुद से इस संचार तंत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। नहीं, लेकिन चूंकि मेरे घर में खासकर मेरा बच्चा मेरा फोन नहीं पकड़ता, उसको हिम्मत नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि फोन बच्चे के हाथ में दे देना, बिल्कुल छोटे बच्चे के हाथ में दे देना, एक तो उसका गलत एडिक्शन पकड़वा देता है। हाँ पीयूष जी बोलिए। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। देखिए बच्चों को फोन न देना वो अपने अलग बात है, लेकिन हर परिवार का अपना एक डायनेमिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में आपको शायद कोई नेटवर्क इशू है। हाँ रचित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि हमें ये बिल्कुल दायित्व परिवार का प्राथमिक है, लेकिन अगर परिवार किसी कारण से उस दायित्व को नहीं निभा पा रहा है, और उसमें जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि 100% गलती परिवार की नहीं है, तो समाज का भी एक दायित्व बनता है। और मैं सरकार के पुलिसीकरण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हमें कुछ दायित्वों को हमें निभाना चाहिए। अन्यथा तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार के मैं पोस्टर सड़क पर लगा दूं, तो ये परिवार का दायित्व है कि बच्चे जब उधर से जाएं तो उनकी आंखों के आगे हाथ रख दें कि वो उसे ना देख पाए। तो इसलिए ये एक प्रश्न है कि सेंसरशिप एब्सोल्युटली खत्म कर देना क्या सही है? ठीक है। अच्छा पीयूष जी, आपके यहाँ से शायद कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही। खैर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आपके बैकग्राउंड में शायद कुछ नॉइज आ रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी आप बात पूरी कीजिए अपनी। I think the issue persists. Gautam, there is an additional aspect of letting everything go on air. I recall my days in
Kolkata. It was Calcutta back then. And I think the CBFC head was Vijay Anand, brother of Dev Anand. And he had initiated a nationwide debate on censorship. And he said that, well, pornography is illegal in our country, but it's freely available. Pornographic stuff is freely available. That does not mean that it has a booming market. You know, it is so easily available that people just don't care. So going back to that logic, we had this debate in our college canteens. Should there be no censorship at all whatsoever? So it turned out, you know, there were some valid concerns and very practical concerns of people against this freedom, which was, you know, just in Delhi, Mumbai, Calcutta, Bangalore, everywhere, you will see a few obscure cinema halls, you know, very badly maintained, poorly lit. There is no AC inside. There is no cleanliness, absolutely. And some C grade or D grade movies run in those halls. Now, those who were against this kind of freedom, they argued that such areas of the city will become inaccessible for decent people if they start showing all kinds of films. You know, this could be a valid concern because the kind of crowd that these halls will attract, if you have. So similarly, you know, what was cinema hall then, now everything is on TV. Can you allow total freedom? Can you allow total freedom? Well, I'm personally, you know, I'm right-wing in my politics and very liberal when it comes to cultural matters. I don't buy this. You know, this is, it makes me squirm when people say this is the appropriate medicine for the public on what they think and what they want and so forth. People like porn. They're going to use porn. There is, porn is all over the internet and it is used freely by Tom, Dick and Harry. You know, from the old to the young. Now, I want to make another point. For years together, we had censor boards who were promoting communism, socialism. I mean, what was Raj Kapoor doing, being so popular in the USSR? It was social. He's very cute and all that, but it is socialism. How many capitalist movies have we ever made? And where has it got us? Until we started turning away from that claptrap illusion, we were at 2%. Even today, when we are, you know, badly damaged by COVID, we are probably at 2% by the time the year ends. Maybe. Yes, nobody knows what exactly the GDP growth rate is at the moment. And the other thing is the tyranny of the censor board. You've got X, Y, Z on it, and they're promoting their own friends, and they're not letting other people come. What has this got to do with the quality of art? I don't like it. I want it freed. If some Islamist is pushing something into a serial, well, if people want to watch it, they're welcome. And if they like it, even better. You've got 4 Khans who've lived off us for 20 years now. They're starting to grow old, made a lot of money, and we love the money. So what are we complaining about? So when we come to what is which, let us understand that the public is not an idiot. The public decides what it likes and doesn't like, what it wishes to ignore and what it wants to accept. And it goes on like that. But I repeat my point that if you're going to say, let's behead all kafirs, that I want sense. Right. पीयूष जी, मेरे ख्याल से अगर आप एक ईयरफोन यूज करें तो बैकग्राउंड की आवाज नहीं आएगी. जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी बात पूरी करें. हाँ, नहीं, मैं ईयरफोन ही यूज कर रहा हूँ. पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक था तो उसको भी बंद किया है. अच्छा, जी, आप कुछ कह रहे थे, इतने में कनेक्शन
कट हो गया। हाँ, मेरा ये कहना है कंसर्न इसमें कि देखिए जैसे हर परिवार में अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के एग्जांपल 4 अलग अलग कमरे हैं, सब में अलग अलग टीवी है, और आजकल सारी टीवी लगभग स्मार्ट टीवी हो गई है, लेकिन अकाउंट एक होता है। नेटफ्लिक्स का अकाउंट एक ही होता है, वो नेटफ्लिक्स अकाउंट सारे में एक्टिवेट होता है, उसमें सबके अपने अपने अलग होते हैं। उसमें आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं कि भाई ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, बट उस वक्त बच्चा क्या देखना चाहेगा उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो नेटफ्लिक्स की होम स्क्रीन है फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग जो थंबनेल्स बन के आते हैं अलग अलग सीरीज के, वो कितने इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं वो आपको क्या हमने देखी है, और ऑटोमेटिक उसमें प्रोमोस प्ले हो जाते हैं। तो साथ में बैठ के देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसको कंट्रोल करना अलग से भी बहुत मुश्किल है अब तक। लेकिन अगर इस पर सरकार कुछ रेगुलेशन लेके आती है तो कंपनियों के सर पर जब ये तलवार आएगी तो वो आई एम श्योर उसको लेके जो भी प्रिकॉशंस उनको लेने वो प्रिकॉशंस को लेंगे, और उसके बाद इसको मैनेज किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इनको बोलेगी कि आपको अडल्ट कंटेंट नहीं चलाने, बिकॉज कई सारे प्लेटफॉर्म है आज के दिन में। उल्लू जैसा एक प्लेटफॉर्म है, MX प्लेयर जैसा प्लेटफॉर्म है, जो कि बेसिकली हार्डकोर पॉर्न ही है। MX प्लेयर फिर भी सॉफ्ट पॉर्न है, लेकिन उल्लू तो हार्डकोर पॉर्न है। अच्छा, अच्छे मीडिया हाउसेस का पैसा लगा हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स पे, और ये भी फ्रीली अवेलेबल है। क्या इनको कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। गौतम जी का कहना है कि शायद पॉर्न इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी कि नॉट एट ऑल, पॉर्न इज ओके। हाँ, आपने देखा कि सारे जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं उनको बैन कर दिया गया, उन्होंने प्रॉक्सी से चालू कर दिया, अब अलग अलग नाम से दोबारा वो सब चल रहे हैं। यस, तो मतलब ये इफेक्टिव नहीं है, ये सेंसरशिप इफेक्टिव नहीं है। कभी ना कभी नेटफ्लिक्स का भी कोई प्रॉक्सी आ जाएगा कि जो लोग सीधे उसको नहीं एक्सेस कर पाते हैं। जैसे हम चीनियों को देखते हैं कि चीन में ट्विटर अवेलेबल नहीं है, फेसबुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन चीनी लोग एक्सेस कर ही लेते हैं, उनको पता है कैसे एक्सेस करना है। तो शुगर तो the issue here is the effectivity of what you intend to do. You may be well intentioned, you may be well meaning, but will you be able to pull it off? Sugar. You means control everything. You means government. Yeah. See, the government cannot control everything. Right. And in fact, there are 3 types of topic we are talking now. One is whether it is anti-national or something like that. It can be, and the other topic that Rachit is saying, anti-Hindu, and third is pornography. Now, as far as pornography is concerned, it's available almost like a glass of water anywhere. Anybody can have it. So how will you control it? That is one. Right. Now, it's not possible. Now, the second thing is that anti-Hindu. Now, whether it's anti-Hindu or not, that one has to see. In fact, today they are doing anti-Hindu maybe, and then somebody may say anti-Christian nahi chalega, somebody will say anti-Islam nahi chalega. Now, as far as Islamic programs are concerned, there is a threat. There is a threat like happened in Paris and all those things. That's why people are more careful, and whenever anything anti-Islam is there or they presume it's anti-Islam, so they take care. It's better to remain safe than go in for those kind of cultural activity. As far as Hindu is concerned, it is not possible. We cannot go and behead anybody. Right. That is right. And as far as Rachit ji, just hold your thoughts there. रचित जी, जैसे कि पीयूष जी ने भी कुछ उदाहरण दिए कि किस तरह से एक सीरियल को केवल जॉर्डन से आपत्ति उठाई गई तो बंद कर दिया गया, और इसी तरह का कंसर्न जब भारतवर्ष में जब हम कोई रेस करता है या सरकार भी रेस करती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलता ही रहता है। अब इसमें आप देखिए, आई एम अ सकर ऑफ हॉरर फिल्म्स, यू नो, एंड I have lost count of the number of horror films where Jesus Christ is shown in utter, you cannot sit through it even if you are not a Christian. मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आपसे कह रहे हैं कि किसी का सर कलम कर दो, जो कि मतलब मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी से आपको नहीं मिलता है। तो एक इसके पीछे एक थियोरी ये है कि हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड को प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेट करते हैं, और इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कैथोलिसिज्म को दे शो इट इन पुअर लाइट। वो प्रोटेस्टेंट को सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेस्टेंट फेथ को। अमेरिका भी बाय एंड लार्ज प्रोटेस्टेंट कंट्री है, यूके भी प्रोटेस्टेंट कंट्री है।
तो ये लोग जनरली जो है इनका टारगेट क्रिश्चियनिटी नहीं होता, इनका टारगेट कैथोलिसिज्म होता है, लेकिन वो सब आप कर सकते हैं। केवल इस्लाम एक ऐसी चीज है जो जिस पर आप हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो आप शिया की बात करें या सुन्नी की बात करें। आप अगर सोचते हैं कि हजरत अली पे आप सवाल करेंगे क्योंकि उनके प्रति शियाओं का आस्था ज्यादा है सुन्नियों के मुकाबले, तो भी आप नहीं बचेंगे। आयतुल्लाह जो है वो आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। जी 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 मैं इस पर आऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक पिछली बात पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा, जिसमें था कि सेंसरशिप पूरी तरह से हम हटा दें। तो मैं एक हाइपोथेसिस इस पर रखना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं और मेरे चैनल पर काफी पॉपुलर हैं, वो है अब्दुल। अब अब्दुल इस एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लाभ उठाना चाहते हैं और उनकी डिमांड है कि वो अपनी बकरी के साथ अपने प्रेम संबंध एक फिल्म में दिखाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से लॉज को फॉलो करता हूं, तो जैसे पोर्नोग्राफी भारत में अलाउड नहीं है, तो मैं उसकी मर्यादाओं को पूरा रखूंगा, मैं केवल, माफ कीजिएगा लेकिन मैं केवल फोर प्ले दिखाऊंगा, ठीक है। और वही कहते हैं और वही वो कहते हैं कि मैं अपने चौराहे पर भी करूंगा क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कहां तक हम इस चीज को अलाउ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पोर्नोग्राफी सब जगह अवेलेबल है, लेकिन हम इसे कितनी फ्रीली अवेलेबल बना सकते हैं। और जैसा पीयूष जी ने बताया कि ये जो बाउंड्री है बहुत मैलिएबल है, इसमें हम केवल परिवार के ऊपर डाल के कि आपकी गलती है कि आपके बच्चे तक वो चीज कैसे पहुंच गई। आपके YouTube पर चल रहा था और उसमें एकदम से प्रोमो आ गया, आप भी नहीं देखना चाह रहे थे और आपके बच्चे को दिख गई, आप तो बच्चे को कोई एजुकेशनल वीडियो दिखा रहे थे, तो पूरा हम परिवार पर डाल दें। और एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम अगर हम दे दें अनुमति, तो उसकी परिणति कहां तक जाएगी ये हमें देखना होगा। दूसरी बात जो सुगतो जी की और जो आपने इस्लाम के ऊपर प्रश्न उठाया, और मैं उस चीज को फिर वहीं ले जाना चाहूंगा कि यही अगर हम अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के ऊपर बात बताएं, जैसे पीयूष भाई ने बताया कि बलूचिस्तान के ऊपर ऐसा दिखाया गया था, तो आर्ट, हमें ये मानना होगा कि आर्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हम उसके ऊपर हार्ड वायरिंग नहीं कर सकते कि आप नहीं दिखा सकते, आपको बैन कर देंगे या ये कर देंगे, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और तभी मैंने बोला कि अगर हम इस एक्सप्रेशन की फ्रीडम के नाम पर, अगर MF हुसैन ने जो स्टिल में किया था, वही अगर हम मोशन में चीजें दिखाने लगे कि नहीं ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मेरे ख्याल से वो स्वस्थ नहीं होगा हमारे समाज के लिए। और हमें पता है कि इस्लाम के विरुद्ध आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पूरे कपड़े पहने हुए भी अगर किसी का चित्र बना देंगे तो आपका सर कलम करने का उनके लिए वाजिबुल कत्ल है। तो इसलिए कोई उनके यहाँ एम्बिग्विटी नहीं है इस चीज की। तो मैं मानता हूं कि जो प्रोटेस्टेंट्स वाली बात आपने हॉलीवुड के लिए कही वो ठीक है, लेकिन उसमें एक इनर सेंसिबिलिटीज उनके द्वारा भी रखी जाती है कि वो किसी को मॉरली ऑफेंड करने के लिए, मैं यहाँ सिर्फ ऑफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉरली डिमोरलाइज करने के लिए और ऑफेंड करने के लिए वैसा नहीं करते हैं जैसे हमारे यहाँ पीके आदि फिल्मों में किया गया है। जी तो हमें वो डिस्टिंक्शन बनाए रखना पड़ेगा। हाँ पीयूष जी, आप अपनी बात करें, उसके साथ एक और प्रश्न का भी जवाब दे दें कि ये जो हम कह रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आता है, कई बार ऐसा होता है कि जो CBFC के या किसी भी बॉडी के जितने भी मेंबरान होते हैं उनको एक लिस्ट दे दिया जाता है कि जब आप सर्टिफिकेशन करेंगे या फिर आप सेंसरशिप करेंगे तो इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे कि ये है या नहीं है। उसके आधार पे आपको सीन काटने का रिकमेंडेशन करना है या रखने का रिकमेंडेशन करना है। उसमें दिक्कत ये है, कई बार फिल्में एक ऐसी होती हैं, जैसे अगर बच्चों की बात करें, जिसमें कि अगर आप फिजिकल न्यूडिटी की बात करें तो नहीं है, सीन में कोई फिजिकल न्यूडिटी नहीं है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के साथ डील किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि बिन ब्याही लड़की मां बन जाती है, सीन में कोई न्यूडिटी नहीं है, ठीक है। एक बच्चा जो है, एकदम छोटा बच्चा है, वो तो यही समझता है कि जिससे शादी होती है उसी से बच्चा होता है, ठीक है। तो अब जो ब्यूरोक्रेट है वो तो लकीर का फकीर है, उसको दिखेगा कि सीन में न्यूडिटी नहीं है मतलब एडल्ट नहीं है। ऐसे टिपिकल सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे?
म्यूट आप शायद म्यूटेड हैं, आप देखिए स्क्रीन के नीचे, हाँ अनम्यूट ऑप्शन है। So my concern is not about anti-Hindu content at all, जैसा सुगातो जी ने everybody has right to show whatever they want as long as the narrative is right. We cannot allow a wrong narrative to show out through, because जैसे अगर आप लैला जैसे सीरीज को देखेंगे, so what जो भी उसमें पिक्चराइज किया गया, जो भी उसमें नैरेटिव दिखाने की कोशिश की गई कि आर्यव्रत करके एक फिक्शनल डायस्टोपियन हिंदुत्व का, उसके बाद मतलब उस तरफ से आप कैसे जा सकते हैं? आप अगर सती प्रथा के अगेंस्ट कुछ दिखाना चाहते हैं, you're more than welcome. करप्ट प्रैक्टिसेस इन आवर टेंपल्स प्लीज दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम लोग तो भाई वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वन वर्ल्ड फैमिली की, तो हम तो सबको वैसे भी वेलकम करते हैं, हर तरह की आइडियोलॉजीज को, हर तरह के थॉट्स को। तभी हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का प्रोविजन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सवाल जवाब बहस ये तो हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का हिस्सा रही है। उनके यहाँ जो अब्राहमिक रिलीजन है वहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो Point taken. Right. I think we have lost Piyush once again. So we are approaching the end of our program. I'll take final remarks from everybody. Shugato first. Yeah. Sorry, I got disconnected. Sorry. Yeah. You may complete your point. सो अब देवव्रत पटनायक जैसे अगर जो लोग आके हमारे हिंदुत्व के ऊपर किताबें लिखते हैं और उसके बाद वो रॉन्ग नैरेटिव को पुश करने की कोशिश करते हैं, तो इस अटैक है। ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए अगर सरकार किसी मैकेनिज्म को लेके आ रही है तो वी शुड डेफिनेटली वेलकम इट। अब रही बात आपके दूसरे सवाल की, जिसमें आपने कहा कि उस तरह के एक सर्टेन कंटेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो नया वो मैकेनिज्म और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि सीबीएफसी का करंट स्ट्रक्चर है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस तरह के जो गलत नैरेटिव हैं, गलत कंटेंट का प्रोजेक्शन है, हम उसको रोक सकें। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट I'm privy to certain information जो एक कमेटी फॉर्म हो रही है उसमें क्या हो रहा है वहाँ पे, तो मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि उसमें जिन लोगों को लिया जा रहा है वो इसको रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। Right. So perhaps Shugato, the solution lies in people like Shyam Benegal and not in people like Prahlad Nihalani, who would, make a mess of it. So final remarks. Yeah, your final remarks. No, government has woke up only after getting a notice from the Supreme Court, and they have shifted it from IT Ministry to INB Ministry. I hope the government will wake up now, right. I mean, remain awake now and form a really professional body, right. Regulate it properly, so that in future when the government changes and somebody else comes, and they will not be able to change it. It should be done like that. And I hope that, some kind of control remains there. Yes, I am not against complete, I'm not against control. There should be some kind of censorship, even in USA or these movies coming from elsewhere. They had some age-wise regulation, etc., 7 year, 12 year, and something like that, 18 year, PG, etc. So I find there is no harm in those then. But then again, yes, complete regulation in this age of free technology is very difficult. Right. Gautam, final remarks. Well, I am against censorship almost across the board, except when it is either damaging to the country as a whole in terms of absolute balderdash that has been, let's say if you get a Nayak telling us something rubbish about India, well, censor it. If there is some Islamist deciding to behead 50 people on a pitch and show it on TV, censor it. But, the nuancing of various things, please trust the public. I do not trust bureaucrats or politicians to tell me what I should think and what my cultural sensitivities ought to be. But I do trust the public. जी, right. रचित जी, हम लोग अक्सर जब फ्रीडम की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं तो तुरंत अमेरिका का उदाहरण देते हैं, लेकिन शायद इस मामले में सबसे ज्यादा उदार नीति अगर किसी की है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की है। आप डेनिश फिल्म्स देखें, लग्जमबर्ग की फिल्म देखें, स्वीडिश फिल्म, नॉर्डिश फिल्म वगैरह देखें आप, तो उसमें सेंसरशिप नाम की कोई चीज नहीं होती है।
लेकिन स्कैंडिनेवियन समाज जो है वो कब से हमारा आदर्श हो गया। जी, फाइनल रिमार्क्स इसी के साथ। बिल्कुल। और जो भी मेरे मित्र अब्दुल की तरफ से मैसेज आया है कि जो लोग एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उनको वो अपनी फिल्म के प्रीमियर में बुलाना चाहेंगे। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होगा, हमारा जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें कभी भी अधिकार की बात कर्तव्यों के बिना नहीं हुई है। और हमें ये मानने में कोई शर्म या महसूस नहीं होनी चाहिए या अपने आप को अनलिबरल नहीं मानना चाहिए कि आर्ट और सिनेमा और ये जो कलाएं हैं इनका समाज निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल होता है और उस रोल को, इनके इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसको बिना किसी दायित्व के भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जी पीयूष जी, सीबीएसई में क्या अब्दुल को सदस्यता मिलेगी? सीबीएफसी में अब्दुल को सदस्यता मिलेगी क्या? अब सीबीएफसी में अब्दुल को सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है इस पर आपको एक दिन जैसे अलग समय निकाल के उस पर डिबेट करना चाहिए। जी फाइनल रिमार्क्स करें। हाँ, समाधान बताएं। मुझे लगता है कि कमिंग बैक टू सेंसरशिप ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक गवर्नमेंट को उतना ही इसमें वो करना चाहिए जहां तक कि एक लगे कि हाँ ये रेगुलेटेड होना चाहिए, ना कि एकदम ये सेंसर्ड हो जाना चाहिए। जी मेरे ख्याल से इससे बेहतर हमें निष्कर्ष नहीं मिल सकता था इस कार्यक्रम के लिए। आजादी है वो पूरा नहीं जाए। या रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड नॉट an absolute censorship. Well said. Yes. That's the message we are sending out from this program in tonight's edition of Wait for 8. That was all the time we had, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us. Vande Mataram. Vande Mataram.